So good morning, dear students. And let us continue with partial differential equation. Yes, in the last lecture we have studied the first shortcut method. Now we are going to see the second method to find out the PI. So see, type 2, just a minute. When f of xy is equal to sine ax plus by or cos ax plus by, it is as similar as when the thing which we have studied in differential equation, linear differential equation with constant coefficient. Okay. So now the thing is that when RHS would be sine or cos, then and then only we are going to apply the things. So what are the things that we are going to apply? It is very simple. In the linear differential equation, whenever d square is there, we supposed to substitute d square equal to minus into a square. Minus is different, a square is different. On the similar ground, see here in this partial differential equation, d would be there, d dash would be there. Once d and d dash would be there, see the substitution. D square equal to minus into a square, d into d dash minus ab, d dash square is equal to minus b square. See the simple thing. Then just operate that things in the RHS. That means f 1 upon f of d square minus d dash plus d dash square operating on sine or cos is equal to 1 upon f of minus a into minus 1 into a square. See, deliberately I am using minus 1 into a square. Otherwise what will happen, we will directly minus a square, we will say minus a square minus ab minus b square, and that will create a confusion. So to avoid that confusion, I am uttering minus into a square minus into ab minus into b square. We are going to substitute minus into a square in the terms of d square, and d dash would get replaced with minus into ab, and d dash square will be minus into b square, and then the rest of the things will follow. On the similar ground, we will try to solve one problem. See, just a minute. Huh? Dabba 3z upon dabba x square minus 4 into dabba 3z by dabba x square dabba y. Dabba 3z by dabba x dabba y square is equal to 2 into sine 3x plus 2y. See what this problem is. Clear cut in the first instant, जब भी मैं इसको पहली बार देखता हूँ, what I am going to observe, 1 d by dx is extra. Here also, here also. That means dabba by dabba x, differentiation with respect to x has been taken one more time, which is extra. This thing has to be get clear. Understood? Because this will be very useful while solving the problem. So what we are going to do? This is a homogeneous differential equation. All these things are true. Unless and until it is homogeneous, we are not going to solve it. First of all, we are going to write it down in the symbolic form that we already know. हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि हम उसको कैसा करते हैं. पहले ही बोल रहा हूँ, this is not d, this is dabba. क्योंकि क्या होता है कि हमेशा वो प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, मैं पिछली बार भी बोल दिया हूँ कि ये d by dx नहीं है, dabba by dabba x and dabba by dabba y. So dabba by dabba x equal to capital D, dabba by dabba y equal to d dash. Substituting those two in the given differential equation, what we are going to get? Dabba 3z, sorry d3z minus 4d square into d dash z plus 4d dash square z equal to RHS as it is. Now what is this thing? This is thing that अब ये हो गया तो सिंबॉलिक फॉर्म है, तो मुझे इसमें से CF चाहिए और PI चाहिए. To find out the CF, consider LHS to be equal to 0. That means D3 minus 4D square D dash plus 4DD dash is equal to 0, क्योंकि Z 0 नहीं हो सकता.
सिमिलरली जैसा हम डिफरेंशियल इक्वेशन में करते थे ऑन द सेम ग्राउंड, क्या जीरो नहीं हो सकता, z जीरो नहीं हो सकता, मान लो ये बात, क्योंकि अगर z जीरो हो गया तो ये पूरा इक्वेशन कहाँ पे चला जाएगा, जीरो के पास चला जाएगा, दैट वोंट डू, अंडरस्टूड। देयरफॉर अब ये पूरा इक्वल टू जीरो कर दिया, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सी केयरफुली, d कॉमन निकाला तो इट इज डी स्क्वायर माइनस फोर डी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। वी नो, ये सब्सटीट्यूशन क्रिस्टल क्लियर है, पुट d इक्वल टू m एंड d डैश इक्वल टू 1। ये करने के बाद m इंटू ब्रैकेट, क्लियर कर दूं जरा से, इसको देखने में आसानी हो जाएगी, हाँ, m इंटू ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, सो m माइनस टू का होल स्क्वायर, दैट मीन्स m इक्वल टू जीरो टू टू। अब ये होने के बाद वी वांट टू राइट डाउन द थिंग्स इन द CF, सो CF वुड बी f1 ऑफ y जीरो के लिए, प्लस f2 ऑफ y प्लस 2x इस 2 के लिए, रिपीटेड है इसीलिए x इंटू f3 ऑफ y प्लस 2x, अंडरस्टूड, क्योंकि ये रिपीटेड रूट है इसीलिए x आया, क्लियर। अब इतना क्लियर हो जाने के बाद टू फाइंड आउट द पी आई, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पी आई, सो वन अपॉन पी आई इक्वल टू वन अपॉन जो भी दिया है वो, जो भी एफ ऑफ डी डी डैश जो भी है वो, ऑपरेटिंग ऑन द आरएचएस, व्हाट इज आरएचएस, 2 इंटू साइन ऑफ 2x साइन ऑफ 3x प्लस 2y। वंस इट इज क्लियर, अब इसको आसानी से देखते हैं क्या होगा, ये देखो जरा ध्यान से, 2 बाहर आ जाएगा, d बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में होगा डी स्क्वायर माइनस फोर डी डी डैश प्लस फोर इंटू डी डैश का स्क्वायर साइन ऑफ 3x प्लस 2y। व्हाट द रूल सजेस्ट, जहां जहां डी स्क्वायर है वहां वहां माइनस इंटू ए स्क्वायर, डी और डी डैश जहां जहां है वहां वहां माइनस ए बी, डी डैश का स्क्वायर जहां जहां है माइनस बी का माइनस इंटू बी स्क्वायर। अब व्हाट इज ए, 3, व्हाट इज बी, 2, व्हाट इज ए स्क्वायर, 9, 4, minus 9, minus 4. I am applying the things, huh? So understood. So d square will be replaced by minus 9, 4 into d d dash minus 6, 4 into minus 4 into minus 6, 4 into d dash square minus 4, total calculation minus 9, ये 36 प्लस हो गया, ये माइनस 16 हो गया, टोटल कैलकुलेशन प्लस माइनस करके कितना होगा, देखो, सो फाइनल आंसर वुड बी, फाइनल मतलब फाइनल नहीं है, ध्यान से देखना, हाँ, माइनस 9 प्लस 36 माइनस 16 प्लस 36 माइनस 16, ये आ गया 20, 20 में से 9 चले गए 11 माइनस 11, तो यहाँ पर ये बात देखो बच्चों, एक छोटी सी चीज रह गई है, यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या है, 11, प्रिंट मिस्टेक है, याद रखना, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 11, 1 बाय डी साइन ऑफ 3x प्लस 2y, डी अभी बाकी है, डी मतलब क्या, डेरिवेटिव, 1 बाय डी मतलब क्या, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लो इसका, इसको क्लियर कर देता हूं, सो द फाइनल आंसर वुड बी cos of 3x minus of integration of sin minus cos 3x plus 2y divided by 3, यानी माइनस 2 by 11, समझे ना, इंटू 3 यानी 33 cos of 3x plus 2y, दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, एक चीज रहेगी, ये वो कौन सी, जो भी आपने वो क्या था ना, वो वहां पर 11 चाहिए था, वो 11 बाकी है, बाकी सिस्टम क्रिस्टल क्लियर। अब देखो मैं इसी प्रॉब्लम को दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, क्या है दूसरा प्रॉब्लम, डी डी, ये मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये चाहिए यहाँ पर डैबा, समझे ना, डैबा बाय डैबा एक्स
and dabba y and dabba y. So dabba 2z by dabba x square minus dabba 2z by dabba x dabba y equal to sin x plus sin x into cos 2. अब ये प्रॉब्लम आसान है, ऐसा वन स्ट्रोक में हमें लगता है कि नहीं ये तो सिस्टम क्लियर कट है, तो हम इसको आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, नो इश्यूज। लेकिन उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सेंसिबली इसको देखना पड़ेगा कि ये क्या है। तो ध्यान से देखो क्या है, ये है होमोजीनियस है, इसमें कोई शक नहीं। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश ऑपरेटिंग ऑन जेड इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2y। सी एफ आराम से निकल जाएगा, सी एफ का भी कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आएगा, पी आई में आएगा। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। सी एफ का भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि डी हम डी की जगह एम रखेंगे, डी डैश की जगह 1 रखेंगे, तो ये एम स्क्वायर माइनस एम होगा, एम इंटू ब्रैकेट एम माइनस 1, यानी 0 एंड 1 रूट्स होंगे। तो लिखेंगे सी एफ लिखेंगे एफ वन ऑफ वाई, क्योंकि एक्स 0 है इसके लिए। दूसरा लिखेंगे एफ टू ऑफ वाई प्लस एक्स, क्योंकि एक्स 1 है इसलिए 1x। ठीक है, ये बात याद रखना बच्चों, गलती हो सकती है। अब इतना हो जाने के बाद पी आई, अब पी आई क्या कर रहे हैं, बड़ा आसान। क्या किया था हमने अब तक, जो किया था वही आगे यहाँ पर भी कंटिन्यू करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब हमें डायरेक्टली प्रॉब्लम सिस्टमेटिक वे से दिया करते थे, यहाँ पर साइन इंटू कॉस। अब साइन इंटू कॉस है, इसका मतलब क्या है, ये साइन ए इंटू कॉस भी है फॉर्मूला। तो साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला कौन सा है, बहुत बार हमने यूज किया था, 12th में यूज किया था, 11 12th इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में भी बहुत बार यूज किया है हमने इसको। सो द फार्मूला इज साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। सिमिलरली आप कौन से फॉर्मूले जनरेट कर सकते हो, साइन ए कॉस बी कर लिया, कॉस ए साइन के साइन बी का भी सेम फॉर्मूला होगा, अल्टरनेट कर लिया तो भी चल जाएगा। उसको साइन बी कॉस से कंसिडर किया तो भी चल सकता है। कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, ये दो फार्मूले भी आप क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सो बेटर ये होगा कि ये सब फार्मूले आपके पास रहे। अब मैं यहाँ पर जो चीज है वो डायरेक्टली यूज करता हूँ, साइन ए कॉस बी, तो 1/2 बाहर ले लेंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 1/d स्क्वायर माइनस डी डी डैश। सब्सटीट्यूट कर दो सीधा सीधा, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश मतलब क्या। अब हम आराम से जानते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, दो अलग अलग हो गए। ध्यान से देखना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, चीजें समझ करो। यहाँ पर ए बी की वैल्यू बात अलग, यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज अलग। यहाँ पर ए की वैल्यू 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 -2, यानी पहले इसमें हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा डी स्क्वायर इक्वल टू -1, डी डी डैश इक्वल टू -2, और दूसरे इसमें हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा डी स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड डी डी डैश इक्वल टू +2। So what the difference will be? So the difference will be, see carefully, 1/2 sin x plus 2y, छोड़ दो इसको, 1/d square minus d d dash -1 minus into -2, 1/2 sin x minus 2y बाद में देखेंगे, -1 -2, यानी what the thing is, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर आ गया 1, यानी 1/2, और ये हो गया माइनस एंड माइनस -3, ये आंसर आ गया -3 इंटू 1/2 -6, यानी ये माइनस। सो द फाइनल आंसर वुड बी 1/2 साइन ऑफ x प्लस 2y माइनस 1/6 साइन ऑफ x माइनस 2y। ध्यान से देखना बच्चों, डिफरेंस ये जो भी है, वहां पिछली बार वहां पर एक डी एक्स्ट्रा बचा था डिनोमिनेटर में, इसीलिए हमने क्या किया, उसको यूज किया सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। अब ये प्रॉब्लम आसान है, आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये वाला, ये आपके लिए है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, मैं अगली टाइप पे चला जाऊंगा, अगले प्रॉब्लम पर चला जाऊंगा।
अब ये भी प्रॉब्लम मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। रीजन, इसमें साइन एक्स प्लस टू वाई एंड ई का पावर 2x प्लस वाई यानी पहली टाइप और दूसरी टाइप का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम आपके होमवर्क के लिए है, ये भी है, छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं तीसरे टाइप पे आता हूँ। सो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स का पावर एम वाई का पावर एन, पी आई इक्वल टू 1 एफ ऑफ डी डी डैश इक्वल टू एक्स का पावर एम वाई का पावर एन। ये गलती से ए हो गया है, वो एन ही है। हाँ, सो एफ ऑफ डी डी डैश का पावर -1 यानी पता चला बच्चों ये क्या है, जैसा हम पिछले स्ट्रक्चर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको ऊपर लेके जाते थे और ऊपर लेके जाने के बाद उसको क्या करते थे, सॉल्व करते थे, एक्सपांड करते थे, वैसा ही एक्सपांड करना है, उसी स्ट्रक्चर में एक्सपांड करना है, उसी के साथ उसको क्या करना है, सॉल्व करना है और बाद में प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना कि ये स्ट्रक्चर प्रॉब्लम थोड़ा सा आईएमपी है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है इसके ऊपर। और ये एक बार हो गया कि हमारा बस ये आखिरी और इसके बाद एक टाइप है, तो हमारा पूरा चैप्टर भी वाइंड अप हो जाएगा। अब फाइंड द जनरल इंटीग्रल सॉल्यूशन जो भी है उसका कौन सा है दिया हुआ है, डेबा टू जेड बाय डेबा एक्स स्क्वायर, मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, प्लस 3 इंटू डेबा टू जेड डेबा एक्स डेबा वाई प्लस 2 इंटू डेबा टू जेड डेबा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब ये कौन सा इक्वेशन है, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें कोई शक नहीं। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेबा बाय डेबा एक्स इक्वल टू डी एंड डेबा बाय डेबा वाई इक्वल टू डी डैश। इट वुड बी डी स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी डी डैश प्लस 2 इंटू डी डैश का स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। फिलहाल बाकी सब चीजें भूल जाओ और बाद में मैं क्या बोल रहा हूँ इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। सी अब फाइंड आउट करेंगे तो आर एच एस पूरी 0, पुट करोगे डी इक्वल टू एम एंड डी डैश इक्वल टू 1। सब्सटीट्यूशन यूज करने के बाद इक्वेशन बनेगा एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं ये जो इक्वेशन है इसमें d इक्वल टू एम डी डैश इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे। ये पुट करने के बाद इक्वेशन बनेगा एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर्स होंगे m प्लस 1 m प्लस 2 यानी m इक्वल टू -1 -2। दैट मीन्स CF इक्वल टू f ऑफ y प्लस -1x यानी y माइनस x प्लस f2y minus 2x using -1 and -2। अब to find the pi, pi equal to 1 upon d square plus 3d dash d dash plus 2d dash का स्क्वायर x अल्फा x plus 2y। इतना होने के बाद अब थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको कैसा सॉल्व करना। हमें करना क्या है, हमें इसको सॉल्व कौन से कॉन्टेक्स्ट में करना है, हमें इसको सॉल्व सिर्फ और सिर्फ कौन से कॉन्टेक्स्ट में करना है, डी कैश उसके कॉन्टेक्स्ट में करना है। ध्यान से देखना, इसको हमें सॉल्व करना है एक ही चीज के साथ, या तो डी डैश के साथ नहीं तो डी के साथ, समझे? ठीक, तो डी डैश के साथ नहीं तो डी के साथ, दोनों में से एक के साथ सॉल्व करना, कोई भी एक पकड़ के चल सकते। ठीक है, हम पकड़ के चलेंगे डी डैश, यानी डी को बाद में अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, उसका विषय नहीं है, वो देखेंगे, मैं बोल दूंगा उसको कैसा सॉल्व करना है क्या। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना क्या है, मैंने क्या किया, डी डैश डी स्क्वायर को कॉमन निकाला एलएचएस में से, डिनोमिनेटर में से। अब डिनोमिनेटर में से कॉमन निकाला डी स्क्वायर को, तो ये बनेगा 1 प्लस 3 डी डैश अपॉन डी स्क्वायर 2 डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। एक डी कैंसिल हो गया इसके साथ, ये एक डी और ये एक डी कैंसिल हो गया, 3 डी डैश अपॉन, उसको ऊपर लेके गए, ऑपरेटिंग ऑन एक्स प्लस टू आए, हाँ एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई, हाँ इसको ऊपर लेके गए, ऊपर लेके गए मतलब 1 बाई डी स्क्वायर 1 प्लस 3 डी डैश अपॉन डी, ये कैंसिलेशन होने के बाद जो बचा है वो प्लस 2 डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एज इट इज, इसका पावर -1 एक्स प्लस वाई। अब इतना क्लियर हो गया। अब ये कौन सा फैक्टर है, पूरे लीनियर फैक्टर है, मतलब
इसका एक्सपांशन, किसका एक्सपांशन, इसका एक्सपांशन 1+x का फार्मूला सिर्फ एक ही बार अप्लाई होगा। डी डैश स्क्वायर वाली टर्म मेरे काम की नहीं है, ये बात पिछली बार भी हम देख चुके थे। यानी ये टर्म एक्सपांशन हमारे काम का कब तक है, ये लीनियर फैक्टर होने के कारण सिर्फ यही एक चीज हमारे काम की है, बाकी ये पूरा एक्सपांशन हमारे काम का नहीं है, भूल जाते हैं उसको। काम की कौन सी चीज है, सिर्फ ये। यानी सॉल्व करेंगे तो 1/d² कॉमन निकाला हुआ 1-3d' प्लस डॉट 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 भूल गए x+y। सॉल्विंग क्या मिलेगा, x+y इंटू 1 x+y -3 एज इट इज 1/d एज इट इज। ध्यान से देखना 1/d एज इट इज, d डैश, d डैश मतलब क्या, d डैश मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। d डैश मतलब क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, ये याद रखना। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ x+y में से सिर्फ और सिर्फ y का डेरिवेटिव निकलेगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। See carefully, rest of the things will be treated as a constant and see what is happening। 3 into d dash मतलब d dash x+y, इसका मतलब ये x का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1, इसीलिए इसका आंसर आया 1। सो द फाइनल आंसर वुड बी, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, x+y -3 1/d ऑफ y। अब व्हाट इज 1/d ऑफ 1, 1/d मतलब डेरिवेटिव 1, 1 का सॉरी d मतलब डेरिवेटिव, 1/d मतलब इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, इस 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x। सो आंसर क्या आया, ध्यान से देखना, इसका आंसर x आया है। तो 1/d² के लिए 1/d² एज इट इज, x के लिए x एज इट इज, y के लिए y एज इट इज, -3 इंटू 1/d के लिए -3x। समझ में आ गई बात, क्लियर कर रहा हूं। सो 1/d² x माइनस x प्लस वाई -3x यानी y -2x। अब इसका 2 बार इंटीग्रेशन ले लिया तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। अब 2 बार इंटीग्रेशन मतलब x²/2 y x³ 3, x पहले से था इसलिए 3 आ गया। अब आप बोलोगे कि सर ये 2 कहाँ गया, बच्चों वो 6 आएगा ना डिवाइड बाय, 2 बार इंटीग्रेशन लेंगे तो 2 के साथ क्या हो गया, वो कैंसिल हो गया। यानी x²/2 इंटू वाई -x³/3, दिस इज द फाइनल आंसर अलॉन्ग विथ किसके साथ, CF के साथ। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब मैं ये प्रॉब्लम आपको बोलूंगा नहीं, ये इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि RHS दोनों की क्या है, सेम है। अब ये प्रॉब्लम आपको इंडिपेंडेंटली क्या करना है, सॉल्व करना है एज अ होमवर्क, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। RHS दोनों की सेम, बाकी सब चेंज नहीं होगा, बाकी कुछ भी स्लाइट चेंजेस होंगे, सिर्फ आपको पिछला प्रॉब्लम देखना है और ये प्रॉब्लम क्या करना है, उसी के बेसिस पे क्या करना है, सॉल्व करना है। अंडरस्टूड, साइमल्टेनियसली क्या करते जाओ, उसको लिखते जाओ, ठीक है। ये प्रॉब्लम हम लेंगे, ये वाला प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम कैसा होगा, ध्यान से देखना, δ3z/δx² -2 इंटू δ3z/δ2x δx²δy, हाँ, e इज इक्वल टू 2 इंटू e का पावर 2x प्लस 3x²y। अब ये कॉम्बिनेशन है, किस किस का कॉम्बिनेशन, पहली मेथड का और तीसरी मेथड जो अभी हम देख रहे हैं उसका। तो सबसे पहले होमोजीनियस फॉर्म में इक्वेशन है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, यानी δ/δx इक्वल टू कैपिटल D, δ/δy इक्वल टू D डैश, सब्सटीट्यूट करना है, दोनों की जगह D डैश की जगह उसको सब्सटीट्यूट करना है। अब करना क्या है, ध्यान से देखना, d³ -2d' d' ऑपरेटिंग ऑन z इक्वल टू
2e का पावर 2x 2e का पावर 2x प्लस 3x स्क्वायर y। द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा, CF फाइंड आउट किया, CF के रूट फाइंड आउट करने के लिए m d इक्वल टू m d डैश इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करने के बाद m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मीन्स m स्क्वायर इक्वल ऑपरेट m स्क्वायर बाहर, m माइनस 2, that means 0 0 2 are the roots. So see carefully how the CF is going to be written. C f1 of y प्लस x इंटू f2 of y, ये 0 के लिए हो गया, दोनों 0 के लिए हो गया, प्लस f3 of y प्लस 2x। अब pi इक्वल टू 1 अपॉन जो भी दिया है वो ऑपरेटिंग ऑन 2e का पावर 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई। इसको सेपरेट कर दिया, सेपरेट दोनों को। इसके लिए जहां जहां d जानते हैं हम बहुत से, अब ये e का पावर 2x है क्या? ना ना ना, ये e का पावर 2x प्लस 0y है, ये भूलना मत। यानी जहां जहां d वहां वहां 2 और जहां जहां d डैश वहां वहां 0, ये बात याद रखना। सो हाउ द थिंग्स विल बी 2 इंटू ई का पावर 2x 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 0, यानी फाइनली बना ये सिर्फ 2 क्यूब यानी 8 यानी e का पावर 2x बाय 4। ये देखो e का पावर 2x बाय 4, यानी ये यहाँ पर खत्म हो गया, मतलब कट नहीं हुआ, ये कैंसिल नहीं हुआ है। इसका इंटीग्रेशन लेके हमने इसको क्लियर कर दिया, ये यहाँ तक। अब इसको हम डील नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं इसके पास जाता हूँ, सो सी केयरफुली, थोड़ा सा देख लेना इसको कैसा है क्या नहीं, तो साइमल्टेनियसली जाएंगे इसके पास। अब हाँ, 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर डी डैश किसके साथ ऑपरेट हो गया? 3x स्क्वायर 2, 3 बाहर निकला, सीधा सीधा डी स्क्वायर डी क्यूब कॉमन निकला। अब डी क्यूब कॉमन निकाला तो 1 अपॉन 1 माइनस 2d डैश अपॉन डी आ गया, क्योंकि डी क्यूब कॉमन निकाला है हमने। डी स्क्वायर और डी क्यूब में से एक डी बच गया यहाँ पर, इसको हम ऊपर लेके गए तो ये बना 3 बाई डी क्यूब 1 माइनस 2 डी डैश अपॉन डी का पावर माइनस 1 एक्स स्क्वायर वाई। इसको हमने एक्सपांड किया, एक्सपांड करने के बाद ये आया 1 प्लस 2 डी डैश। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए देखना है मुझे? y के लिए देखना है। y लीनियर है, y के लिए क्यों देखूंगा? क्योंकि न्यूमरेटर में d डैश है। ध्यान से देखना बच्चों, न्यूमरेटर में d डैश है इसलिए हमने y को डील किया। x को भी डील कर सकते थे, तो न्यूमरेटर में हम सिर्फ x को डील करते, समझे? d को डील करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ना? ठीक है, यानी इस y को कॉन्टेक्स्ट में रख के d डैश ऊपर है, इतना क्लियर लेना। अगर हमें वो नहीं चाहिए तो हमें d डैश कॉमन निकालना पड़ेगा, ये बात याद रखना। सो 1 प्लस 2 डी डैश बाई डी प्लस डॉट डॉट डॉट, y की डिग्री 1 है इसीलिए ये पूरा डॉट 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 हमारे लिए आउट ऑफ कवरेज एरिया है, हम इसको देखेंगे। सो द व्हाट द थिंग इज गोइंग टू गेट रिमेन 1 प्लस 2 डी डैश अपॉन डी, एक्स स्क्वायर वाई ऑपरेट को, so 1 into x square y, 2 into d dash as it is, 2 into d, 2 by d as it is, d dash of y 1, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू d dash के साथ y का डेरिवेटिव 1, यानी फिर क्या बचा? 2 into x square 1 by d as it is। अब ये 1 by d मतलब इसका एक बार इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन लेने के बाद ये बन गया x क्यूब बाई 3, अंडरस्टूड? x क्यूब बाई 3। ये देखो e का पावर 2x बाय 4 एज इट इज, e का पावर 2x बाय 4 एज इट इज। अब इसका मुझे कितनी बार इंटीग्रेशन लेना है? 3 बार इंटीग्रेशन लेना है, समझे ना? इसका मुझे कितनी बार इंटीग्रेशन लेना है? 3 बार इंटीग्रेशन लेना है, ये मैं भूलूंगा नहीं। आप बहुत अच्छे से जानते हो इंटीग्रेशन 1 बार लेना है, 2 बार लेना है, 3 बार लेना है, मतलब क्या? और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही लेना है, ये बात याद रखो, क्योंकि डी है, अंडरस्टूड? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही लिखना है क्योंकि क्या है? डी है। आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर देखो, फाइनल आंसर जो भी है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की इसको क्या करना है? आपको चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम यहाँ पर वाइंड अप कर रहा हूँ। और नेक्स्ट और ये लास्ट स्ट्रक्चर अपना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसको डील करते हैं, फाइनल करते हैं।
सो क्या है ये, अगर आपका फंक्शन विन एनी फंक्शन लिखा हुआ है ना, जो आपका फंक्शन, कोई भी फंक्शन हमारे सामने आए तो अब हम उसको कैसा डील करें, जो हमारे स्ट्रक्चर में नहीं बैठता होगा वो, या जिस जिस वजह से हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसको कैसा डील करें। तो उसको डील इस तरीके से करो कि उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में उसको डिवाइड करो, यानी जैसा जनरल इंटीग्रेशन हम करते थे ना, तो वैसा जनरल इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व कैसा करना, कोई भी फंक्शन हो हमारे सामने जो हमारे स्ट्रक्चर में ना बैठता हो, तो उसको कैसा सॉल्व करना उसके लिए। और एक बात याद रखना कि f of xy is going to get considered f of x c minus mx, where y is equal to c is equal to y plus mx, ठीक है ना, c is equal to y plus mx। तो इतना याद रखना, यानी क्या किया है उसने, जो y है उसकी जगह c माइनस एम एक्स पुट कर दिया है, इतना ख्याल रखना है ये बात, ठीक है। ये हम पहले भी कंसिडर कर चुके हैं, वो पिछला लेक्चर आप जब देखोगे तो आपको ये सब चीज क्लियर हो जाएगी। ये क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करो और बाद में इंटीग्रेशन लो, एज सिंपल एज इट इज, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम हमारे सामने है, डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस टू डे डैश का स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन जेड इक्वल टू वाई माइनस वन ई का पावर एक्स। अब ये देखो किसी में भी नहीं बैठ रहा, वाई माइनस वन ई का पावर एक्स मल्टीप्लीकेशन आ गया। अगर इसको इंडिपेंडेंटली डील करूं तो ये y इंटू ई का पावर एक्स आ जाएगा, इंटू वन माइनस वन इंटू ई का पावर एक्स आ जाएगा, माइनस वन इंटू ई का पावर एक्स तो हम आराम से सॉल्व कर देंगे, y इंटू ई का पावर एक्स तो किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं बैठता, तो कैसे डील करें, बड़ा आसान, सीधा सीधा जो भी इक्वेशन दिया हुआ है हमारे सामने उस इक्वेशन को जैसे के वैसे कंसिडर करो। दिया हुआ प्रॉब्लम इस सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो d इक्वल टू उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसिडर करके सी एफ निकाल लो, तो d इक्वल टू एम पुट करो, d डैश इक्वल टू डी डैश इक्वल टू वन पुट करो, इक्वेशन बनेगा एम स्क्वायर माइनस एम माइनस टू, दैट मीन्स रूट बनेंगे टू एंड माइनस वन। सी एफ लिखोगे सी वन, सी एफ लिखोगे एफ ऑफ वन वाई प्लस टू एक्स, एफ टू वाई माइनस एक्स। ये किसके लिए, टू के लिए एंड माइनस वन के लिए, इतना क्लियर हो गया। अब पी आई, पी आई मतलब वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस टू डी डैश का स्क्वायर वाई माइनस वन का पावर एक्स। अब इतना हो गया, अब इतना होने के बाद इसको सेपरेट कर सकते हैं, कैसे सेपरेट कर सकते हैं जरा ध्यान से देखो, इधर देखोगे तो ये क्या पता चल जाएगा, इधर ही देखो, इसमें से अगर मैंने डी कॉमन निकाला, क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, इसमें से अगर मैंने डी कॉमन निकाला, यार हम पहले भी बहुत अच्छे से जानते थे इसको कैसा सॉल्व करना है, उसी प्रॉब्लम में से देखो तो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन बना, ये इसके फैक्टर्स बने। फैक्टर्स मतलब जरा ध्यान से देखो सही है क्या, डी इंटू डी स्क्वायर, डी इंटू टू डी डैश का टू डी इंटू डी डैश डी, टू डी डैश का स्क्वायर। अब इन दोनों का एडिशन करोगे तो डी स्क्वायर डी माइनस डी स्क्वायर माइनस डी डैश एंड टू माइनस टू डी डैश का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको चेक कर लेना है। अब इसको चेक करना है मतलब क्या करना है, बड़ा आसान है, ध्यान से देखो, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, वन अपॉन डी डैश को भूल जाओ, वन अपॉन वन माइनस डी माइनस टू डी डैश, इसको ही कंसिडर, समझे, इसको ही कंसिडर करो। पिछली स्टेप देखोगे तो वन अपॉन डी माइनस एम डी डैश इज ऑपरेटिंग ऑन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा सी माइनस एम एक्स डी एक्स, यानी जहां जहां y था वहां वहां c माइनस एम एक्स लिखा, बस। वन अपॉन डी माइनस टू डी डैश ऑपरेटिंग ऑन y माइनस वन ई का पावर x, कंसिडर y इक्वल टू c माइनस टू एक्स। क्यों c माइनस टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू 2 है, समझे ना, m की वैल्यू 2 है इसीलिए c माइनस टू एक्स। सो इस वन अपॉन डी माइनस टू डी डैश की जगह आ गया इंटीग्रेशन, थोड़ा सा इसको सबको क्लियर कर लूं, वन अपॉन डी माइनस टू डी डैश की जगह आ गया इंटीग्रेशन
ओरिजिनल फंक्शन एज इट इज, बट द चेंज इज जहां जहां y वहां वहां c minus 2x, तो c minus 2x minus 1 e का पावर x dx. Now what is happened? By this substitution, what has happened? It has given me an extra opportunity to solve this differential equation in x only. यानी ये y हट गया यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ मैं x में सॉल्व करूंगा इसको. अंडरस्टूड? अब इसका इंटीग्रेशन लेना बड़ा आसान है मेरे लिए. क्यों? इंटीग्रेशन ऑफ c कांस्टेंट है ना पूरा, ये इसके साथ है ना, e के पावर x के साथ है ना, तो कॉमन सेंस यूज करो. समझे ना मैं क्या बोलूं? कॉमन सेंस यूज करो. u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा. u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगोगे तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगोगे तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा. पहली चीज एल आई ए टी ई, एल आई ए टी ई एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन, अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन. समझे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. ठीक, इसको क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखना. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब ये फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x माइनस बिग इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट? c का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e का पावर x dx. माइनस 2 बाहर निकला, प्लस प्लस हो गया, e का पावर x का इंटीग्रेशन और एक बार लिया तो e का पावर x, यानी फाइनल आंसर बना 2e का पावर x. समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? c माइनस 2x माइनस 1 e का पावर x प्लस 2e का पावर x. ये बना प्रॉब्लम किसका? हमारा प्रॉब्लम. अब इतना हो गया तो इसको सिंप्लीफाई कर लो. सिंप्लीफाई कर लिया तो देखो सिंप्लीफाई करने की क्या बात बना, c इंटू ई का पावर x माइनस 2x e का पावर x माइनस e का पावर x और इसके साथ मिला के e का पावर x बन गया. दोनों का कंक्लूजन प्लस माइनस होके. अब फिर से पुट c इक्वल टू वाई प्लस 2x. पुट कर दो भाई c इक्वल टू वाई प्लस 2x. c इक्वल टू वाई प्लस 2x पुट करने के बाद देखो ये क्या बन गया. ये बन गया 1 अपॉन डी प्लस डी डैश ब्रैकेट में y प्लस 2x e का पावर x माइनस 2x e का पावर x प्लस e का पावर x. इतना क्लियर हो जाने के बाद इसको फिर से रीस्ट्रक्चर करो. रीस्ट्रक्चर करोगे तो क्या मिल जाएगा, y इंटू ई का पावर x, y इंटू ई का पावर x, 2x e का पावर x प्लस 2x e का पावर x माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल. यानी क्या बचा, y e का पावर x प्लस e का पावर x. फाइनल आंसर 1 अपॉन डी प्लस डी डैश एज इट इज. अब चीज क्या है, वेयर एवर y इक्वल टू जो भी है लिखो c प्लस एम एक्स. वॉट इज m? ये d डैश के साथ क्या है, प्लस 1 यानी c प्लस एक्स. देखो y की जगह c प्लस एक्स पुट कर दिया. e का पावर x एज इट इज, e का पावर x एज इट इज dx. इसको हटा दो, इंटीग्रेशन ले लो, यानी इंटीग्रेशन ऑफ c प्लस एक्स e का पावर x प्लस e का पावर x dx. अगेन इंटीग्रेशन अब यहाँ पर लगेगा तो फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा बच्चों. किसके लिए, इसके लिए, और e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x. अब मैं ये चीज आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप परफॉर्म करो और बाद में वापस जहां जहां c है वहां वहां y प्लस एक्स पुट, y माइनस एक्स पुट कर दे. अंडरस्टूड? और उसके साथ ये वाला प्रॉब्लम भी आपके प्रैक्टिस के लिए. सो दीज टू प्रॉब्लम्स आर फॉर योर प्रैक्टिस. शांति से सिस्टमेटिकली इसको करना. और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमारा पूरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.